है ना। तो होता क्या है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते चले जाते हैं, प्रोग्रेस करते चले जाते हैं, पर हमारा माइंड, जैसे कि आपको पता है ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, तो ग्रॉस बॉडी तो वैसे भी हमें ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, जो हमारी पूरी ग्रॉस बॉडी है, यानी कि जो पूरे सेंसेस से बनी हुई है, दैट इज कर्मेंद्रिय एंड ज्ञानेंद्रिय, इन सेंसेस से बनी हुई है, उसे हमें कैसे प्यूरिफाई करना है? कृष्णा की सर्विस में यूज करके प्यूरिफाई करना है। बट सटल बॉडी को जो है वो हमें कैसे प्यूरिफाई करना है? सटल बॉडी के माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो को सेपरेटली अलग अलग जो है वो हमें प्यूरिफाई करना होगा। वी ऑल वेरी वेल नो दैट जब हमारा देह त्याग होता है एंड वी गेट अ नेक्स्ट बॉडी, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द desires which are stored in the subtle body. And when the soul moves to the next body, then the subtle body also goes with the soul. तो सटल बॉडी कब छूटती है हमारी? बताया जाता है सटल बॉडी जो है वो प्यूरिफाई होती रहती है। जितनी ज्यादा वो प्यूरिफाई होगी उतना हम प्रोग्रेस करेंगे स्पिरिचुअली, एंड फाइनली जब हमारा आएगा टाइम टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, देन वी विल लीव आवर सटल बॉडी एंड द स्पिरिट सोल गोज बैक होम, बैक टू गॉड हेड, राइट? सो to stop the repeated cycle of birth and death also is द प्यूरिफिकेशन ऑफ सटल बॉडी, है ना, तभी जाके हमारा रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ भी स्टॉप होगा। सो इस सटल बॉडी में माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये तीन चीजें हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल, this is the order Krishna has given in Bhagavad Gita, ki above the senses is the mind, above the mind is the intelligence, and above the intelligence is the soul. So who sees whom? The senses see the world outside. The mind sees the senses, what the senses are enjoying. The intelligence sees the mind. It has to control the mind. And soul sees the intelligence. Soul gives the direction to the intelligence that what is the path to be followed. Accordingly, the intelligence should control the mind and the mind should control the senses. But अभी होता क्या है? When the senses see the outside world, then the senses give the impression of likes and dislikes to the mind. The mind keeps on just fulfilling the desires that I like this, I don't like this, and the intelligence intelligently plans how to fill those sense gratificatory desires. And soul is left. So it is always said that senses can be regulated, senses can be controlled, but the main control which has to come is from the mind and the intelligence. So intelligence has, the soul has to guide the intelligence, and intelligence is strengthened by studying the scriptures, and mind is strengthened by chanting of the Hare Krishna Mahamantra. तो द पूरा का पूरा अगर आप 6th चैप्टर ऑफ भगवत गीता देखेंगे तो उसमें कृष्णा ने माइंड के बारे में ही बताया है कि हाउ द माइंड इज, हाउ द माइंड कैन बी कंट्रोल्ड एंड व्हाट ऑल थिंग्स। तो ये माइंड जो है ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो अगर आप लोगों के पास आपकी भगवत गीता है तो उसमें आप 6th चैप्टर में, भगवत गीता के 6th चैप्टर में वर्स नंबर 5 देख सकते हैं। क्या है, कौन सा है वर्स नंबर 5? 6.5। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मेव हि आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। So what it is said, one must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. तो अगर हम इसका सिर्फ ट्रांसलेशन ही देखेंगे तो वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ, कहाँ से डिलीवर करना है, किस चीज से डिलीवर करना है? वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ फ्रॉम द रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ with the help of his mind and not degrade himself. क्या होगा डिग्रेड? मतलब कहाँ डिग्रेड होंगे हम, कैसे डिग्रेड होंगे?
So degrade hona means losing the human form of life and gliding again back onto the lower species, gliding again back into the complete evolutionary cycle. So the mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. So यहाँ पर या हमें अपने आप को डिलीवर करना है या हमें अपने आप को डिग्रेड करना है. That depends on with the help of his mind. So Krishna has said कि with the help of his mind, a human being can either deliver himself or degrade himself. तो ये फ्रेंड हो सकता है या एनिमी हो सकता है. लेकिन उसके इमीडिएटली थोड़े समय बाद अगर हम देखें तो अर्जुन ने इसी चैप्टर में क्या बोला है, चंचलम ही मना कृष्णा. कौन सा वर्स है वो इसी चैप्टर का? 6.34 Madali. 34. Okay, please everyone can go to 6.34. चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम. For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. है ना? तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, you have to, with the help of your mind, either you have to deliver yourself or you have to degrade yourself. But Arjun is saying, but Krishna, the mind is so strong, so obstinate. It is more difficult to control the mind. Rather, it is easy to control the wind. I can control the wind, but I cannot control my mind. तो कृष्णा क्या बोलते हैं अर्जुन को? नेक्स्ट, उसी का नेक्स्ट श्लोक, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. है ना? तो कृष्णा ये नहीं कहते व्हाट आर यू स्पीकिंग अर्जुन, इट्स ऑल नॉनसेंस. नो, ही डज नॉट से लाइक दैट. ही सेज yes Arjun, I understand asamshayam, definitely it is, there is no doubt about it that the mind is very difficult to control. But what you can do is you can practice and you can develop detachment and then you can control the mind. है ना? तो practice and detachment बताते हैं. तो अभी क्या practice और क्या detachment is the main thing that a spiritualist should understand. और हमारा जो पूरा आज का ये है, ये इसी पे डिपेंड, यही डिस्कस करेगा कि what actually we have to practice and how we have to develop detachment so that our mind becomes our friend. है ना? So that is the whole thing. ये मैंने प्रिल्यूड लिया थोड़ा सा कि these are the 3 verses, 6th chapter के ही 3 verses based on which हमारे ये माइंड के ऊपर का पूरा डिस्कशन चालू होगा. सो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, माई माइंड इज इन अ वेरी गुड शेप राइट नाउ, है ना? आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो थॉटफुल, आई एम सो सेंसिटिव, आई अंडरस्टैंड पीपल, आई कैन जज पीपल वेरी वेल, आई कैन गेट टू नो. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. तो इससे हमें लगता है कि ठीक है, हमारा माइंड जो है वो बहुत गुड शेप में है. लेकिन हम कभी कभार देखते हैं कि हमारे माइंड ऐसे टेंट्रम्स थ्रो करता है कि वी आर ओनली नॉट एबल टू कंट्रोल दैट. है ना? तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल सिचुएशंस को ब्लेम करने लगते हैं. हमें लगता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना, ये प्रॉब्लम का रीजन है गवर्नमेंट, ये प्रॉब्लम का रीजन है वॉर, ये प्रॉब्लम का रीजन है वो डिवोटी, ये प्रॉब्लम का रीजन है ये वेदर, ये प्रॉब्लम का रीजन है ये एजिटेटेड, इतना इतना एजिटेशन एंड इतना होस्टाइल एनवायरनमेंट. है ना? वी ट्राई टू फाइंड एवरी रीजन फॉर द प्रॉब्लम आउटसाइड, बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें जो है वो कुछ होगी हमारे हाथ में थोड़ा बहुत चेंज करने की या थोड़ा बहुत ये करने की. मैक्सिमम चीजें वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती है कि हम उसे चेंज कर पाए या कुछ कर पाए. बट व्हाट इज इन आवर हैंड्स, व्हाट इज इन आवर हैंड्स इज टू एडजस्ट आवरसेल्व्स, टू सी आवर पर्सपेक्टिव, टू सी द पर्सपेक्टिव दैट वी कैन हैव. है ना? सो सबको लगता है एक्सटर्नल सारी प्रॉब्लम्स है और सारे एक्सटर्नल लोग, सारी एक्सटर्नल चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं. लेकिन the mind which is internally with us, it never allows us to stay alone is the problem. तो श्रीमद् भागवतम में एक अवधूत ब्राह्मण की स्टोरी आती है. आई एम श्योर आप सबने कई बार कई लेक्चर्स में सुनी होगी कि वो अवधूत ब्राह्मण जो है वो बहुत सफर करता है.
अपनी लाइफ में, और फिर वो लास्ट में कंक्लूजन निकालता है कि क्या रीजन था मेरी इस लाइफ में सफरिंग का, है ना। तो वो क्या बोलता है, भागवतम में उसका संस्कृत में वर्ड्स कोटेड है, आई विल टेल द इंग्लिश ओवर हियर, कि व्हाई डिड आई सफर। सो वो बताता है, वॉज इट बिकॉज ऑफ अदर पीपल? तो he says, no, 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 not because of other people. Then he said, was it because of the demigods? देवताओं ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से मैंने सफर किया? No, 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 not demigods. Was it because of time? काल रिस्पॉन्सिबल था मेरी सफरिंग के लिए? नहीं, नहीं. Was karma responsible for my suffering? No, karma was also not. Was the graha, planets, astrology, was it responsible for my suffering? No. Then finally he says, my mind, the mana was the only cause of my suffering, है ना। सो ये अवधूत ब्राह्मण, और आपको पता है ये अवधूत ब्राह्मण की स्टोरी कौन किसको सुनाता है श्रीमद् भागवतम में? ये कृष्णा जो है वो उद्धव को सुनाते हैं। जो 11th कैंटो है, वो 11th कैंटो का जो मेजर पार्ट है वो कृष्णा उद्धव संवाद है, और वो कृष्णा उद्धव संवाद जो है उसे उद्धव गीता भी कहा जाता है। तो उस, आपको पता है जब कृष्णा द्वापर युग के एंड आ गया था, कुरुक्षेत्र वॉर फिनिश हो गया था, सब कुछ हो गया था, पांडवों को अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया था, राज्य दे के और सब कुछ हो के, उसके बाद कृष्णा वाज प्लानिंग टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिकॉज द पर्पस ऑफ हिज डिसेंट ऑन दिस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वाज अकम्प्लिश्ड। सो उद्धव गॉट टू नो, उससे पहले मौशल लीला भी हुई थी, ये भी आपको पता है कि सारे यदुवंश को कृष्णा ने आपस में फाइट करा के अपने अपने स्थानों पर वापस भेज दिया था, बिकॉज ही न्यू कि यदुवंश इतना पावरफुल हो गया है और वो उनका ही डायनेस्टी है, तो कोई और उनको नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएगा। सो मौशल लीला के थ्रू कृष्ण ने यदुवंशियों को भी अपनी अपनी एटर्नल पोजिशंस पे भेज दिया था, एंड देन ही वाज अबाउट टू लीव। So Uddhav got to know कि now Krishna is about to end his pastimes in this material world. So what did Uddhav say? Uddhav told Krishna that I will not be able to live without you and I am coming back with you. So Krishna said, no, Uddhav, I will give you all the instructions that you have to go and tell whom? You have to go and tell to the Nar Narayan Rishi who are in Badrikashram. They were waiting for my instructions, but I just couldn't reach there. So, on behalf of me, you have to give them the last instructions which I am giving you. तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 11th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम इज सच अ ब्यूटिफुल कैंटो। वैसे तो भागवतम इज फुल स्वीट, कहते हैं ना गुलाब जामुन, किसी भी साइड से खाओ वो अच्छा ही है, बट 11th कैंटो इज सो नरिशिंग, सो नरिशिंग। उसमें कृष्णा इज गिविंग हिज इंस्ट्रक्शंस अगेन, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस इन वेरियस ऑल द मोर डिटेल्स। भगवत गीता में अर्जुन को तो दिया ही है कृष्णा ने इंस्ट्रक्शंस, तो ठीक है कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस तो है हमारे पास, तो क्यों फिर हमें और इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है या कुछ हमें ये चाहिए? बट नहीं, जितने भगवत गीता में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कृष्णा ने अर्जुन को, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम इन मोर फर्दर डिटेल्स विथ मोर फर्दर फाइनर इंस्ट्रक्शंस जो है वो कृष्णा ने उद्धव को दिए हैं, इसलिए वो उद्धव गीता कहलाई जाती है, राइट, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा टू उद्धवा। तो उसमें कृष्णा जो है वो ये अवधूत ब्राह्मणा की स्टोरी उद्धव को सुना रहे हैं कि ये अवधूत ब्राह्मणा हैज कम टू दिस कंक्लूजन विच इज द राइट कंक्लूजन, एंड आई एम टेलिंग यू दिस उद्धव that this is the right conclusion, that the mind is the only enemy of a person who leads to suffering, है ना। सो ये वाला एक ये था ना, एक कोई इंग्लिश प्रोवर्ब भी है शायद कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल, है ना। तो पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन तो आ ही रहा है, बट हम उस चीज से सफर कर रहे हैं या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन। अब ऐसा नहीं है डेफिनेटली कि पेन मीन्स आपको कोई घाव हो गया और आपको रियली कुछ पेन है और आप उसका भी ना करें और अपने माइंड को आप बोलते रहे कि नहीं ये कुछ नहीं है। नो, इट इज नॉट दैट इट इज नॉट दैट वी आर सेइंग, बट व्हाट वी आर सेइंग इज माइंड का काम ही है चीजों को मैग्नीफाई करना, उसे गलत इंटरप्रेट करना, फिर नेगेटिव वे में इंटरप्रेट करना और डिस्ट्रैक्टेड रहना, है ना। माइंड को हम MIND स्पेल करते हैं ना, तो वो मैग्नीफाई, इंटरप्रेट, एन इज नेगेटिवली इंटरप्रेट एंड डिस्ट्रैक्ट। सो माइंड का काम ही है वो करना। तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा नहीं हम अपने आप को, आई मीन बहुत ही ज्यादा नहीं हम माइंड को ह्यूमिलेट कर रहे हैं या ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, या बहुत ही ज्यादा। कई लोगों को अगर हम ये माइंड के बारे में कुछ भी डिस्कस करते हैं ना, तो लगता है आप तो मुझे ही इतना बोल रहे हैं, मुझे ही इतना बुरा भला बोल रहे हैं,
तो फिर उनको बोलना पड़ता है यू आर नॉट द माइंड, यू आर द स्पिरिट सोल, सो यू हैव टू कीप योर माइंड सेपरेट। और अगर हम आपके माइंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम आपको माइंड का कुछ बता रहे हैं, तो वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, है ना। लोग बहुत बहुत पर्सनली ले लेते हैं कि अरे आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत नेगेटिव इंटरप्रेट करती हूँ, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, मैं हर चीज को मैग्नीफाई कर देती हूँ, छोटी सी बात होती है और उसका मैं बहुत बड़ा इश्यू बना देती हूँ। We are not telling you this. So we have to really, when we understand, तो एक्चुअली क्या होता है, ये हमें क्यों समझने की जरूरत है, हम ये क्यों आज डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमें 5 ऐसी चीजें प्रैक्टिस करनी है जिससे हमारा माइंड जो है वो हमारे एनिमी से हमारा फ्रेंड बने। जब वो हमारा फ्रेंड बनेगा तो आप खुद ही देखेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहता है हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो इंटेलिजेंस तो हमारा शार्पन हो जाएगा, हमें स्क्रिप्चर्स पता रहेंगे, हमें पता रहेगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, पर हमारा डिसीजन मेकिंग पावर जो, मेमोरी भी इंटेलिजेंस का काम है, डिस्क्रिमिनेशन भी इंटेलिजेंस का काम है, डिसीजन भी इंटेलिजेंस का काम है, सारी चीजें इंटेलिजेंस का जॉब डिस्क्रिप्शन है। वो हम सारा स्क्रिप्चरल स्टडी से हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट स्टिल कभी कभार ऐसा होता है, आई न्यू आई डिडंट हैव टू डू इट बट स्टिल आई डिड, है ना। कभी कभार होता है हमारे साथ, कभी कभार होता है कि अरे मुझे पता है ये गलत है, फिर भी देखो मुझसे हो गया। So then who took over at that time? किससे ये हुआ, है ना। माइंड ही हमारा जो है वो चंचलम ही मना कृष्णा, है ना, वायु रेव सुदुष्करम, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जस्ट हम जो है वो 5 ऐसी प्रैक्टिसेस देखेंगे जो हमें डे टू डे बेसिस पे करनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे माइंड को काफी अच्छे से एनिमी से फ्रेंड की तरफ मूव कर सकते हैं, और उसको हमारी स्पिरिचुअल, that mind is only going to help us in our spiritual practices, we will see that. and आप जब ये 5 practices देखेंगे ना, तो आप खुद ही समझेंगे कि इसमें से बहुत सारी चीजें हम कर ही रहे हैं, बट इन सारी चीजों को और इंटेंसली अगर हम करेंगे तो हम फास्ट प्रोग्रेस करेंगे। यू विल रियलाइज, ऐसा नहीं है कि हम सब नई कोशिश कर रहे हैं, वी आर ऑल डूइंग दैट, बट द ओनली थिंग इज अगर हमें ये क्लियर पता रहता है तो हम उस पर इंटेंसली और सिंसियरली और वर्क कर सकते हैं। वरना जनरली तो हमें ना ये चीजें क्लियरली पता भी नहीं होती है, इसलिए हमारे को थोड़ी डिफिकल्टी आती है। बट आई एम श्योर कई लोग बहुत एक्सॉल्टेड होते हैं, बट आई आई हैव ऑलवेज रियलाइज्ड दैट अगर मुझे किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी अगर आती है और क्लैरिटी से आती है, तो मेरे लिए उस चीज को प्रैक्टिस करना बहुत ईजी हो जाता है। कई लोग क्या होता है, इनबिल्ट ही वो समझ जाते हैं और वो इजिली प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। होता है, कई लोगों का होता है, बट समहाउ मुझे बहुत बहुत क्लियर कन्विक्शन चाहिए रहता है, तब जाके मैं कुछ प्रैक्टिस कर पाती। सो I found this very, 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 very useful, and hence I thought I should share with you all. और वैसे भी मुझे सुजय गोविंद प्रभु ने कहा he wants to continue the shloka where he left last time. So next time he is going to come. तो उन्होंने बोला था माता जी मैं करूँगा। मैंने कहा था ठीक है प्रभु जी, you do however whatever you want to do, I will take this. Which I, लेकिन मैंने बहुत दिनों से इसमें मैंने सोच के रखा था कि मैं डिस्कस करूंगी, कभी कभी कुछ रेलेवेंस आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, बट हो नहीं पाया था, तो मैंने सोचा वील डिस्कस टुडे। एंड आप लोग प्लीज क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो तो वो जॉट डाउन करके रखिए, वी विल डिस्कस एट द एंड। सो इस अवधूत ब्राह्मण की स्टोरी से भी हमें कृष्ण ने क्लियरली बताया है कि आप किसी भी चीज को ब्लेम नहीं कर सकते आपके सफरिंग के लिए। your mind is your real problem. तो फर्दर कृष्णा कहते हैं कि हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम जितनी भी एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश कर लें, बट जब तक हमारा इंटरनल वर्ल्ड हील्ड स्टेट में नहीं रहेगा और इंटरनल वर्ल्ड क्लीन क्लियर नहीं रहेगा, बाहर की कितनी भी एडजस्टमेंट्स जो है वो ज्यादा नहीं हेल्प करेगी। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार एक सेज थे, वो सेज जो है वो एक शिप में बैठे थे और एकदम ऐसे समाधि में थे और एकदम ट्रांस में, और बहुत मेडिटेट कर रहे थे और उनकी शिप चल रही थी, आंख बंद थी, कुछ उनको पता नहीं था क्या हो रहा है और कहाँ क्या, आजू बाजू कौन है और क्या है। तो सडनली उनको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, एंड ही गॉट अ जर्क एंड ही गॉट डिस्टर्ब्ड,
और जैसे ही उन्होंने अपनी आंख खोली, he was so wild and he was so angry from inside that even before opening his eyes he got so much of anger कि वो आंख खोलते ही, कौन है जिसने मुझे मेरे 5 मिनट, कौन है जिसने मुझे मेरे इस मेडिटेशन में डिस्टर्ब किया? एंड ही ओपनड हिज आईज एंड ही सॉ इन दी रिवर, वो पूरा जो बड़ा सा लेक था, वहां कोई नहीं था आजू बाजू। वो उनकी जो शिप, बोट, बोट कहना चाहिए, शिप में रॉन्ग वर्ड यूज करें, स्मॉल बोट, दैट बोट वो जाके सिर्फ शोर से थोड़ा सा टकराई थी, है ना? पर कितना एंगर उनको अंदर से आ गया था। सो नथिंग एक्सटर्नल, तुम्हारा ही अंदर अंदर, नो प्रॉब्लम वाज देयर एक्सटर्नली, द प्रॉब्लम वाज देयर इंटरनली। सो अगर एक्सटर्नल सिचुएशंस हम कितनी भी अच्छी एडजस्ट करने की कोशिश करें, इंटरनल प्यूरिफिकेशन पे अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नथिंग इज गोइंग टू हेल्प। सो व्हाट आर द प्रैक्टिसेस? ये 5 प्रैक्टिसेस हम बोलते हैं, पूरी की पूरी 5 बोलते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस लिटिल बिट इन डिटेल कि ये प्रैक्टिसेस हमें कैसे हेल्प करती है। तो फर्स्ट इज तप, सेकंड इज सत्य, सत्व, थर्ड इज विद्या, फोर्थ इज सेवा, एंड फिफ्थ इज मंत्र। तो आपको लगेगा इसमें से सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं या क्या हो रहा है? तो केयरफुली, कॉशियसली, जान के और माइंडफुली, अब माइंडफुली वापस पर ध्यान देके अगर हम इन सब चीजों को करेंगे तो ये हमारे लिए और बेनिफिशियल होगी। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, इतने इंटेलिजेंटली उन्होंने हमारा प्रोग्राम, अगर आप देखेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोग्राम सेट किया है, वो इन सब चीजों को कवर करता है। ऑस्टेरिटीज, तपस्या, वॉलंटरली तपस्या शिला प्रभुपाद ने हमें कई बताई है, fasting on ekadashis, no four regulative principles following, no eating outside, trying to honor prasad as much as possible, तपस्या पार्ट, ये सब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट मैं शिला प्रभुपाद के बारे में बता रही हूँ कि कैसे उन्होंने ये 5 चीजें हमारे लिए डे टू डे बेसिस पे इंक्लूड की है। तो तप उन्होंने इंक्लूड किया है, सत्व, टू स्टे इन मोड्स ऑफ पैशन, गुडनेस एंड इग्नोरेंस, पैशन एंड गुडनेस, यू नो द 3 मोड्स। तो हमें बताया जाता है जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हम सत्व गुण में रहने की कोशिश करेंगे, उतना हमारे लिए इजी होगा उस सत्व गुण को ट्रांसेंड करके शुद्ध सत्व में जाना, राइट? मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस में रहेंगे तो ऊपर उठना बहुत डिफिकल्ट रहता है ना, शुद्ध सत्व तक जाना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो शिला प्रभुपाद ने हमें कितनी क्लीन हैबिट्स बताई हैं, टेकिंग बाथ डेली, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कीपिंग एवरीथिंग क्लीन अराउंड योरसेल्फ, गिविंग अस deity worship where we have to maintain the highest standards of cleanliness, punctuality, है ना? ये सारी चीजें सत्व गुण है ना, सत्व गुण में आती है। तो डीटी वर्शिप उन्होंने हमें दी, तो हमारे लिए ऑलरेडी सत्व गुण में काफी रहना पॉसिबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? विद्या। ओहो, शिला प्रभुपाद की बुक्स की तो कोई, आई मीन, नो कंपैरिजन। कितना विजडम जो उन्होंने हमें देना चाहा है, दैट्स ऑल प्रेजेंट इन हिज बुक्स, ऑल लिटरेचर्स। सेवा, Srila Prabhupada never translated bhakti as devotion. He translated bhakti as devotional service. So by default, seva aa gayi, and mantra, chanting of the holy names, that is the yoga dharma that we are doing. So ये 5 चीजें जो है, ये हमारे डे टू डे बेसिस में, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में ही बताया था कि हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन हम उसे और ज्यादा केयरफुली, और ज्यादा माइंडफुली, और ज्यादा इंटेंसली, और ज्यादा ध्यान रखते हुए, है ना, जिसे हम कहते हैं कि कोई चीज को केयरफुली करो तो उसका इफेक्ट, जैसे कृष्णा ने एक भगवत गीता भागवतम दोनों में बताया है कि अगर आप बिना फेथ के या बिना 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 उस चीज को ध्यान से किए हुए कुछ करोगे, चाहे वो चैरिटी देना हो, चाहे वो कुछ भी सुनना हो, हियरिंग हो, कुछ भी, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिजल्ट, नीदर इन दिस लाइफ नॉर इन द नेक्स्ट लाइफ। इमेजिन ही हैज सेड नॉर इन द नेक्स्ट लाइफ। जैसे कुछ रिचुअल्स हैं, अगर हम सपोज कर रहे हैं कुछ रिचुअल्स, तो हमें उनमें बिल्कुल फेथ नहीं है ना, तो वो रिचुअल्स का जो बेनिफिट है, जो फलश्रुति बताई जाती है, वो हमें नहीं मिलेगी। जैसे हम चैरिटी दे रहे हैं, फोर्सफुली अगर हमें दिलवाया गया है, या फोर्सफुली हमें बोल दिया गया है कि दे दो, या फिर अगर हमने अल्टीरियर मोटिव से चैरिटी दी है, तो वो हमें कोई फ्रूटफुल नहीं देगी। जबकि चैरिटी, performing ritualistic sacrifices, all these are such good activities that they give you benefits not in this life but also in the next life. But if we have not done it cautiously, if we have not done it carefully, if we have not done it with full faith in that, they are not going to give any results. So same ways ये 5 चीज भी डे टू डे बेसिस में हम करते हैं,
बट कितना केयरफुली, कितना कॉशियसली, कितना माइंडफुली, कितना उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हुए, कितना उसे रियली जानते हुए, समझते हुए कि ये मेरे लिए मेडिसिन है और मुझे ये लेना बहुत जरूरी है, दैट मच इफेक्ट इट इज गोइंग टू गिव, है ना? वॉट इज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या वॉट इज स्पिरिचुअल एडवांसमेंट? इट इज दिस ओनली ना, यही चीजें होती हैं जो हमें आगे ले जाती हैं या हमें ये प्रोग्रेस कराती हैं। एक न्यूफाइट डिवोटी या कोई नया भक्त अभी जब भी जिसने जस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन किया है, आप देखेंगे ही इज वेरी क्विक टू पिक अप क्वारल्स, बट एक एग्जॉल्टेड साधु है, एक एग्जॉल्टेड सेंट है, उसका हम सबसे बेस्ट क्वालिटी देखते हैं टॉलरेंस, है ना? सो ये एडवांसमेंट का क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस तो उसको पता ही है पूरा, पर क्या डिफरेंस है जो ये यहाँ है और वो इतने एग्जॉल्टेड सेंट है ना? सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द प्रोग्रेस दैट अ पर्सन मेक्स। सो तपस्या, सो हम थोड़ा सा बस इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं, देन वील ओपन अप फॉर क्वेश्चन। सो तपस्या, तपस्या को डिफाइन किया गया है वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ सम ऑस्टेरिटीज, है ना? वॉलेंटरली, ये जानते हुए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ हायर प्रिंसिपल है, इसके लिए मैं कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड तपस्या। अभी ऐसी तपस्या, अगर यहाँ गैस नहीं है और हमें ब्रेड बटर खाना पड़ेगा, वो तपस्या नहीं रहेगी हमारे लिए। वो भले तपस्या ऐसे बाहर दिखेगी, लेकिन दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वॉलंटरली डन, एंड दैट्स नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग इट फॉर सम हायर पर्पस दैट आई हैव इन माइंड। जैसे कि बताया जाता है कि वो एक बहुत अच्छा सिंगर है, उसको अपनी वॉइस का ध्यान रखना है, तो वो वॉलंटरली आइसक्रीम्स नहीं खाएगा, स्पेशली जब परफॉर्मेंस डे के आगे पीछे, तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा, है ना? सो दैट इज सम हायर पर्पस दैट ही हैज केप्ट इन माइंड फॉर विच ही इज डूइंग सम तपस्या। So same ways for us devotees, there is a higher purpose of pleasing Guru, Vaishnavas, Krishna. That is why we do some tapasya. तो austerities, voluntarily austerities हम क्या क्या लेते हैं? एकादशी फास्टिंग कर लेते हैं, आचार्यस का अपीयरेंस डिसअपियरेंस फास्टिंग कर लेते हैं। मेनली हमारी अगर आप वॉलेंट्री तपस्या देखेंगे तो वो ईटिंग के राउंड अबाउट बहुत सेंटर करती है ना? बिकॉज इट इज, जब हम महाप्रसादे गोविंदे गाते हैं तब हम सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या है वो, द टंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल, करी वारे जीवा जय। उससे पहले क्या है? सही है, जड़ेंद्रिय, जड़ेंद्रिय ताही काल जीवे फैले विषय सागरे, है ना? तार मध्य जीवा अति लोभमय सुधरमति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तार मध्य जीवा अति लोभमय सुधरमति। सो सारे सेंसेस की अगर तपस्या करने चाहें हम, तो सारे सेंसेस की तपस्या की जाती है, की जा सकती है। Eyes should not be allowed to see anything which is not Krishna conscious. Ears should not be allowed to see anything which is not Krishna conscious. ऐसे हम सारे सेंसेस का देख सकते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी सारी जो तपस्या राउंड रिवॉल्व कर रही होती है, वो टंग के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रही होती है। सो वी डिवोटीज ट्राई टू ऑनर प्रसादम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, they try to avoid onion garlic tea coffee, they do fastings most of the time, फिर they try to live simply, they don't have many much demands कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना? So we try to reduce certain things here and there, we try to associate with devotees more। ये सारी सारी थोड़ी थोड़ी तपस्या डे टू डे बेसिस पे हम करते हैं। और कई लोगों का देखो, कई बार ऐसे सुना होगा, अरे आपके स्टैंडर्ड्स कितने हाई हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय कि स्टैंडर्ड्स कितने हाई हैं? मीन्स स्टैंडर्ड्स कितने हाई है, मीन्स वो कौन सी। अभी मैं एक भक्त से मिली, आई वॉज रियली शॉक्ड। उनके घर में जगन्नाथ डीटीज हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। उन्होंने बताया कि जो जगन्नाथ जी नहीं खाते वो भी नहीं खाती। तो मैंने कहा क्या क्या है माता जी, जगन्नाथ जी नहीं खाते? जगन्नाथ जी टोमेटो नहीं खाते, जगन्नाथ जी पोटेटो नहीं खाते, जगन्नाथ जी कैबेज नहीं खाते, जगन्नाथ जी कॉलीफ्लावर नहीं खाते। मैंने कहा माता जी तो आप खाते क्या है फिर, बचा क्या खाने के लिए? एंड जगन्नाथ जी ये सारी वेस्टर्न पिज्जा पास्ता ये सब नहीं खाते। तो मैंने कहा बाप रे माता जी, बड़ी ऑस्टियर लाइफ है, जगन्नाथ जी जो नहीं खाते वो आप नहीं खाते। मैंने तो मेरा कितना सिली क्वेश्चन, मैंने कहा माता जी आपको कहाँ से पता पड़ा जगन्नाथ जी क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते? माता जी आनंद बाजार में चले जाओ, जगन्नाथपुरी में जो हमको भोग में मिलता है उसी से हमें समझ में आ जाता है जगन्नाथ जी क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा माता जी मुझे शायद ना बहुत लाइफ टाइम्स लग जाएंगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए कि वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, तो मैं उस हिसाब से खाऊं। But yes, there are people who follow really high standards. We don't have to imitate anyone before time, but we can definitely derive inspiration. कि
for Krishna's pleasure, there are devotees who do certain things. So that is tapasya. Sattva, सत्व में रहना, सत्व गुण में रहना, डेवलपिंग गुड हैबिट्स, डेवलपिंग नीटनेस, क्लेanलीनेस, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच comes in सत्व गुण also, कि अपनी स्पीच पे तुम कितना ध्यान रख रहे हो, बोलने में किसे कैसे बात कर रहे हो, क्या हर्ट कर रहे हो, इस पे तो मुझे ही सबसे ज्यादा सत्व में रहने का ध्यान रखना पड़ता है कि समटाइम्स आई फील कि मैं बोलती भी इसलिए हूँ कि आई से टू माई सेल्फ दैट यू फॉलो थिंग्स नाइसली. सो सत्वगुण में रहना इज ऑल्सो अ बिग थिंग. जैसे अपस्ट्रीम स्विम करना हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है, डाउन स्ट्रीम विद द रिवर फ्लो जाना होता है तो हम बहुत इजिली चले जाते हैं. तो सेम वेज पैशन और इग्नोरेंस में बाय डिफॉल्ट हम रह सकते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत क्या, कुछ नहीं करना होता है. यू जस्ट बी एंड यू आर इन पैशन एंड इग्नोरेंस. बट टू बी इन सत्वगुण रिक्वायर्स रियल स्ट्रगल एंड टू मेंटेन दैट सत्वगुण, है ना. एक दिन तो बहुत जोश में, हाँ हाँ सब एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंटली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे हम डिसाइड करेंगे कि ओके फॉर माई ड्यूटीज 3 times ऑफरिंग, 1 time आरती, दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू फॉलो, कंप्लीट पंक्चुअलिटी, ये वो. पर फिर पैशन में आके ये ऐसे नहीं करना चाहिए. You see that what is practically possible for you and how much you are able to maintain. That is very important. So जितना सत्व गुण हम ज्यादा से ज्यादा maintain कर सकते हैं, then that becomes our habit. That becomes our second nature only. कि then फिर will not, I mean, cleanliness freak कई होते हैं. They cannot tolerate जरा सा भी dust, है ना. So वो उनकी अच्छी habit रहती है. तो then that becomes a second nature only कि punctuality, time के लिए अच्छे फिनिकी होते हैं, cleanliness के लिए अच्छे फिनिकी होते हैं. So that is if they have maintained it for a long time, then that becomes their habit. So जितना ज्यादा हम सत्व गुण अपना habit बनाने की कोशिश करें, that is going to help us. Make the mind follow everything daily, day to day basis पे. That is the help that सत्व does. है ना. क्योंकि हमारा माइंड तो कभी बोलेगा आज करते हैं कल नहीं करते हैं, क्योंकि माइंड का काम क्या है, ओनली लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एक्सेप्ट रिजेक्ट. बट इफ यू हैव टू मेंटेन समथिंग, इफ यू हैव टू नो, किसी किसी की आप आदत देखेंगे, इतना रेगुलेशन इतनी रेगुलेटेड लाइफ होती है कि अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो आप टाइम बता सकते हैं कि अभी इतना ही बजा होगा अगर वो ये कर रहे हैं तो. So sattva gun में रहना is if you have maintained regulation for a long time, then that becomes your habit. So the mind knows कि अब मुझे यही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं करना है. तो चैंटिंग करनी है तो करनी ही है. एट अ स्ट्रेच अगर कई लोग चैंटिंग कर रहे हैं तो पता है द माइंड विल नॉट डिस्टर्ब कि अरे अभी तो 10-12 राउंड्स तक इसको कुछ डिस्टर्बेंस, बिकॉज दैट्स बिकम अ हैबिट कि एक साथ बैठे तो 10-12 राउंड्स तो हो ही जाते हैं. आई एम टॉकिंग एग्जाम्पल्स. ठीक है. सो सत्व में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, फूड, movies, music, people whom we meet, what are we eating, what places we are going to, and these all create impressions on the mind, so we have to choose these things wisely. Vidya, third is vidya, that is wisdom. So wisdom purifies, gives clarity, strengthens the intelligence. So wisdom, and I've always said, philosophical conviction always helps you practice spiritual life very nicely. और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट 7 चैप्टर्स अगर किसी ने सही ढंग से पढ़ लिए हैं या सही ढंग से समझ लिए हैं, तो दे विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम इन फिलोसॉफिकल कन्विक्शन, है ना. इतना अमेजिंग फिलोसफी आदि लीला के फर्स्ट 7 चैप्टर्स में डिस्क्राइब किया गया है. सो when the intelligence is strong, when the intelligence is philosophically convinced, then that vidya, that wisdom always helps to practice things nicely, always helps to keep the mind regulated, and it tells the mind that okay, these are the things that has to be done, there's no other way around it. So that is ये. और एक और चीज क्या विजडम हमारा करता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो विजडम हमारा करता है, ये डिटर्मिनेशन, ये स्ट्रेंथ, ये सब चीजें एक है. और एक पर्सपेक्टिव, जो जिसे हम कहते हैं दर्शन,
या जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड व्यू, है ना, व्यू पॉइंट, जो हमारा व्यू पॉइंट है या जो हमारा पर्सपेक्टिव है, इमेजिन अगर वो हमारा शास्त्रिक व्यू पॉइंट है या शास्त्रिक पर्सपेक्टिव है, वी कैन नेवर गो रॉन्ग। अभी आधी प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे माइंड के लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे बेस्ड होता है। सो विद्या गिव्स अस अ गुड पर्सपेक्टिव, अ गुड वर्ल्ड व्यू, अ गुड दर्शन। हम दार्शनिक शास्त्रों के हिसाब से बनते हैं, हम अपने ज्ञान चक्षु से देखना चालू करते हैं, ना कि चर्म चक्षु से। एंड इट गिव्स अस डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ। So these are the two things that vidya, wisdom does. So there was tapa, there was sattva, there was vidya, and then there is seva. अगर सेवा हम बोलें तो सेल्फलेसनेस बहुत जरूरी है, उसके बिना सेवा हो नहीं सकती, है ना। सो ये सेल्फलेसनेस इसलिए जरूरी है कि वी कम आउट ऑफ आवर सेल्फ सेंटर्ड नेचर। तो और ऐसा नहीं है पूरे कंप्लीटली सेल्फलेस हो जाओ, जितना जैसे तुम सेवा कर सकते हो या जैसे तुम सेवा कर सकते हो जितना बढ़ा सकते हो। सो द द सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट सेल्फलेसनेस एटीट्यूड शुड come. So that also helps the mind. Mind constantly thinks me, my, I, what will I get from it, है ना। माइंड कॉन्स्टेंटली अपने आप पे ही फोकस कर रहा होता है। सो सेवा हेल्प्स यू डेवलप सेल्फलेसनेस एंड दैट broadens the mind. एंड मंत्र, साउंड वाइब्रेशन, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, इस पे तो कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। मना इति त्रायते, मना इति त्रायते, मना त्रायते इति मंत्र, मंत्र ही उसे कहते हैं जो मन का तारण करता है। दैट मीन्स इट डिलीवर्स द माइंड। mantra is one thing that delivers the mind. And fortunately, we have got the Maha Mantra for Kali Yuga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this mantra this helps us realize spirituality. Sound ऐसा बताया जाता है, sound is very very effective. हमारा कोई भी सेंस नॉलेज गेन करता है, उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो साउंड से आता है, एंड मोस्ट रिलायबल जो है वो साउंड से आता है। एंड हेंस जब हम चैंटिंग करते हैं तब हमें बताया जाता है कि यू हियर व्हाट यू आर चैंटिंग, है ना। व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग, व्हेन यू आर सेइंग, इतना सा थोड़ा सा इतना लाउड रखो कि तुम्हें तुम्हारे बोले हुए मंत्र सुनाई दे। सो दैट इज साउंड वाइब्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पूरा बताया गया है इस माइंड को कंट्रोल करना, तो लगता है अरे ये इतना पॉसिबल है क्या, ये ना उन जो ब्रह्मचारी बन रहे हैं, जो सन्यासी बन रहे हैं, उन लोग के लिए ही करना है। हम गृहस्था प्रैक्टिकल बातें ही नहीं करते हैं, प्रैक्टिकलिटी देखो, है ना। दैट इज नॉट आई मीन ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल हमें सब देखना होता है, बट एज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिकल सारी चीजों को भी बैलेंस करते करते मैं इन 5 चीजों में अपना कितना ध्यान दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ, ये मुझे डे टू डे बेसिस पे नोट करके आगे बढ़ना चाहिए। सो इसे कहते हैं कि ये एक हमारा फिर ना माइंडसेट, जो मैंने बताया दार्शनिक व्यू, वो पर्सपेक्टिव हमारा वैसा होना चाहिए कि ये चीजें हम ध्यान देके कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द माइंडसेट दैट हैज टू बी क्रिएटेड। और अगर सपोज आप सोचिए किसी एक इंसान का अच्छा माइंडसेट है, तो आपको लगता है उसको कुछ बहुत सारी चीजों की जरूरत है, या उसका हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड करेगा। माइंडसेट इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है, तो हमें एक्सटर्नली डिपेंड करने की कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस इज विद इन, है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड सफरिंग इज आल्सो ऑप्शनल, बिकॉज हैप्पीनेस हमारे माइंडसेट से हमारी हैप्पीनेस आ सकती है। So that is the mindset that all these 5 practices help us develop. और भगवत गीता में भी देखेंगे तो सबसे पहली जो टीचिंग अर्जुन ने कृष्णा को दी थी, वो कौन सी थी? कृष्णा ने अर्जुन को दी थी, वो थी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखतः आगम अपायनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व है टॉलरेंस। सो ये जो 5 चीजें हैं वो अगर हमें करना होगा अच्छे से, माइंडफुली, ध्यान से, तो जो एक्सटर्नल मटेरियल डुअलिटीज आएंगी उनको थोड़ा सा हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ व्हाई कृष्णा सेड कि अर्जुन ये टॉलरेट करो और इन 5 चीजों पे ध्यान दो। सो दैट इज अभ्यास, दैट इज व्हाट कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट, अभ्यास।
जब वो कहते हैं ना नेक्स्ट, जब अर्जुन कहते हैं चंचला में मना कृष्ण, तो नेक्स्ट श्लोक में कृष्णा कहते हैं ना असंशय महाभाव, आई डेफिनेटली अग्री विथ यू अर्जुन, बट स्टिल यू कैन डू इट, हाउ? बाय अभ्यास एंड डिटैचमेंट. सो अभ्यास इज वर्क ऑन these 5 things. That is the abhyas that Krishna is talking. एक प्रभुपाद का लेक्चर मैं सुन रही थी, तो बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल से वो क्लोज करते हैं. इतना बड़ा पूरा बताया प्रभुपाद ने, सब कुछ बताया, अपने को पूरा प्रोग्राम भी दिया, एंड वी आर फॉलोइंग दीज 5 थिंग्स, ये वो. फिर कई एक ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद, then do you think there is no need of any psychologist or any medications or anything? प्रभुपाद ने इतना अमेजिंग आंसर दिया. उन्होंने क्या बोला कि इन अ हॉस्पिटल देयर आर नर्सेस एंड देयर आर डॉक्टर्स. तो क्या एक हॉस्पिटल सिर्फ नर्सेस पे चल सकता है, या क्या एक हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर्स पे चल सकता है? कौन कौन इंपॉर्टेंट है? नर्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट? अगर नर्सेज नहीं होंगी आपको डे टू डे बेसिस पे ठीक करने के लिए, जो भी आपका मेडिसिन का शेड्यूल है, जो भी आपको सब देने का शेड्यूल है, वो फॉलो नहीं कराएंगी, तो आप कैसे ये करोगे? पर अगर सपोज डॉक्टर ही नहीं है और मेन उन्होंने आपका ऑपरेशन ही नहीं किया है, तो फिर आपको डिस्चार्ज कैसे मिलेगा हॉस्पिटल से बाहर? So when we practice spirituality with the right mindset, then that's like a doctor performing the operation. They tell us the root cause, that you are not this material body, you are not your mind also. And the aim is to go back home, back to body. Then who will help you in this? The nurses and all, every day to day में they will help you. So अगर हमें लगता है कि हमें कहीं कुछ किसी भी चीज के लिए मेडिसिन या किसी भी चीज के लिए हेल्प की जरूरत है, it is always right to take that to resolve things, and day to day basis पे ये करना चाहिए. But spiritual practices are like doctors who take care of the root problem, and then you move on. So that's how Prabhupada said. All right, we have 6-7 minutes or maybe 10 minutes for any discussions. आप लोगों के कोई questions है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो we will stop for the day. रामनवमी फेस्टिवल बहुत